Welcome to my channel Sahitya Classes. Today we will read about a sonnet of William Shakespeare, When to the Seasons of Sweet Silence Thought. This is the syllabus of NEP Semester 2nd BA Honours, and I think as the exam is ahead, so it will help you in your preparation. And when if you watch the video, then you will get benefit also. You can got all the details from this video, so please watch my video from starting to ending. So let's start the video. So when to the seasons of sweet silent thought, this is written by William Shakespeare, and here he speaks about the different seasons, and mostly his sonnets were based on about the um, love, and here also he talk about each painful what life when he lost his loved one. And also he described in this poem about his the unfulfilled dreams in this sonnet you can get. So here he spoke about the spring like the buds and blooms remained also of love youth. He talked about summer like summer's glory felt like our dearest joys. So in this way, in this sonnet he described. So in this page also you can see the 14 line of sonnet by William Shakespeare. When to the seasons of sweet silent thought, I summon of remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I sought, and with old whose new will my dear times waste. Then can I drawn an eye unused to flow for precious friends hid in death, deathless night, and weep afresh love's long silence cancelled oh, and mourn expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances forgone, and heavily from woe to woe tell over this sad account of for bemoaned moan, which I knew pay as if not paid before. But if the while I think on thy dear friend, all lodges are restored in summers, sorrows end. So this is the sonnet of 14 lines of विलियम शेक्सपियर. सो इस वीडियो में आपको उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसके साथ आपको वन टाइप का नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखना. सो व्हेन द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट in sonnet 30 from William Shakespeare's collection of 154 sonnets. सो आपको तो पता है विलियम शेक्सपियर 154 सनेट्स लिखे हैं. इनमें से एक सनेट है व्हेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, एंड इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट टचिंग पोएम डीलिंग विथ मेमोरी, ग्रीफ, लॉस, फ्रेंडशिप, इमोशनल हीलिंग. ये सब के बारे में इस सनेट में बोले हैं. The speaker reflects on the painful memories of past failures and the loss of loved ones. So past में उनका जो फेलियर हुआ था, कुछ जो अचीव नहीं हो पा रहा था, ये सब के बारे में ये बोले हैं. लॉस ऑफ लव्ड वन के लॉस में ये बोले हैं. However, the poem ends on a note showing that the thought of a dear made him comfort and restored happiness. सो बात में क्या होता है, जब ये एंड में अपने ऐसे डियरेस्ट फ्रेंड्स को याद करते हैं, जिसमें याद करने से उनका लाइफ में जो सरो है ये चला जाता है, हैप्पीनेस रिस्टोर आता है. ये है आपका पोएम. दिस इज़ द पोएम आई हैव गिवन हियर. एंड हम लोग अगर समरी को देखते हैं, द पोएट सेज दैट व्हेनेवर ही सिट्स अलोन इन क्वाइट रिफ्लेक्शन,
He remembers all the things he has lost, missed opportunities, unfulfilled dreams, departed friends, and painful experiences. These memories make him feel sorrow again, as if he is reliving old griefs. So क्या होता है ना कि जब भी वो अकेला बैठते रहते हैं वहाँ पे मतलब अपने जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी को याद करते हैं, अनफुलफिल्ड ड्रीम को याद करते हैं, डिपार्टेड फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स लोग उनको छोड़ के चले गए उनके बारे में याद करते हैं, और बहुत सारा क्या दुखों का मेमोरी उनके माइंड में आ जाता है. बट इन द फाइनल कपलेट हाउएवर द स्पीकर थिंक्स ऑफ अ बिलव्ड फ्रेंड. तो जब भी फाइनल कपलेट में ये बोलते हैं कि जब भी अपने बिलव्ड फ्रेंड को याद करते हैं ये सब सरो अपने माइंड से चला जाता है और एक टाइप का रिलैक्सेशन उनको मिलता है और हैप्पीनेस उनको मिलता है. ये है आपका समरी ऑफ दिस sonnet. And in this sonnet he talked about all those things. सो थीम्स, अगर हम लोग थीम्स को डिस्क्राइब करते हैं और पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सो मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन आपका क्या बन जाता है, थीम बनता है. दिस सॉनेट एक्सप्लोर्स हाउ मेमोरीज कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड पेन. द स्पीकर रिविजिट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फील्स द इमोशंस एज स्ट्रांगली एज बिफोर. मतलब मेमोरी और रिफ्लेक्शन में मतलब जैसे कि पोएट जब अपने मेमोरी में लाते हैं पास्ट थिंग्स तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं. फिर लॉस एंड ग्रीफ के बारे में इस पोएम में बोले हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड जो डियरेस्ट फ्रेंड्स लोग थे उनको मतलब वो क्या किए हैं, उन लोग छोड़ के चले गए हैं उनको. वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ था वो भी वेस्ट हो गया उनके लाइफ में. फिर फ्रेंडशिप के बारे में बोल रहे हैं और उनका फ्रेंडशिप इतना स्ट्रांग था कि अभी भी याद करने से उनको दुख आ जाता है. लेकिन ऐसा भी फ्रेंड्स लोग हैं जिनको याद करके वो खुशी भी मतलब उनको आता है. इमोशनल हीलिंग, ये बोल रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं और अपने डियरेस्ट फ्रेंड लोगों को याद करते हैं तो तभी उनके माइंड को थोड़ा हील मिलता है, सुकून मिलता है. अगर लिटरेरी डिवाइस को हम लोग देखते हैं, मेटाफर द वर्ड सीजन्स कंपेयर्स द स्पीकर्स माइंड टू ए कोर्ट रूम वेयर मेमोरीज आर जस्ट. तो सीजन जो है ये मेटाफर की तरह यूज किया गया है और ये ऐसा मतलब सीजन्स जो मेमोरीज है एक कोर्ट रूम में जैसे मेमोरीज को भरते हैं ना जज करने के लिए, ऐसा सीजन्स को यूज किया गया है. फिर पर्सनिफिकेशंस, किसको मेमोरीज ग्रिड को पर्सनिफाइड किया गया है, पर्सन की तरह ह्यूमन बींग के तरह परसिव किए हैं. इमेजरी, शेक्सपियर क्रिएट्स विविड इमेजेस ऑफ टीयर्स, लॉस एंड क्वाइट मेडिटेशन. एंड रिपीटेशंस, अगर हम लोग रिपीटेशन को देखते हैं, द रिपीटेड रेफरेंसेस टू रिमेंबरिंग पास्ट सोरोज एम्फसाइज द डेथ ऑफ स्पीकर्स ग्रीफ. एंड कंट्रास्ट the poem contrasts sorrow in the first 12 lines with happiness in the final 2 lines. So these are the literary device that he used. स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर के शेक्सपियरियन सॉनेट कंसिस्ट ऑफ 40 लाइन्स और उनका जो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी होता है. इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, द ट्रेडिशनल मीटर ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स. And the final rhyming couplet presents the turning point volta where sadness changes into joy. So ये था आपका poem The Sonnet by William Shakespeare. And if we will talk about the central idea, the poem teaches that although memories of loss can cause deep sadness, the love and support of a true friend have the power to heal emotional wounds. Friendship becomes a source of strength that outweighs every sorrow. तो ये था आपका central idea. So I think this will helpful for your examination in upcoming examination. So यहाँ से आपको एक तरह का नोट भी प्रोवाइड किया गया है तो आपको ये सब मतलब हेल्पफुल हो सकेगा. जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आता है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है इस सनेट में, क्या क्या थीम्स लिया गया है, इसको भी आप लोग
इस वीडियो अगर क्लियर देखेंगे शुरू से एंड तक तो आप लोगों को भी अच्छे से आंसर आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।